Hello everyone, in this video we are going to cover some higher order thinking questions from chapter 2 Polynomials class 10th NCERT Mathematics. Along with that we will also try to cover few questions from board exam 2025. The first question is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus 5x plus 7, then find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 and alpha and beta are its zeros. Alpha and beta are its zeros. We have to find out the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. First of all, we will find out alpha plus beta, which is equal to minus b upon a. It gives us minus 5 upon 2, which is 5 by 2. Now find out the value of alpha into beta, which is equal to c upon a, that is 7 by 2. Now we have to find out the polynomial whose zeros are these two. If we want to find out the polynomial whose zeros are given, first of all we have to find out the sum of zeros, and the sum will be 2 alpha plus 3 beta plus 3 alpha plus 2 beta. If you will add them, like terms should be added into the like ones. You will get 5 alpha plus 5 beta. 5 will be common, alpha plus beta. Alpha plus beta we have 5 by 2. So it will become 5 multiplied by 5 by 2, which is 25 by 2. Now find out product of zeros. Product of zeros will be 2 alpha plus 3 beta multiplied by 3 alpha plus 2 beta. How we can multiply them? We can multiply them by using distributive property. It will be, first of all we have to multiply 2 alpha with both the terms. You will get 6 alpha square plus 4 alpha beta plus 9 alpha beta plus 6 beta square. Among both these two you can take 6 common, alpha square plus beta square, 9 plus 4, 13 alpha beta. Hope it is clear till here. अब यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग विच आइडेंटिटी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट. तो अब आप यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 13 अल्फा बीटा. अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा. इट इज 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, राइट. अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है. दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें. 6 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा इज 5 by 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 7 by 2. इट गिव्स अस 6 मल्टीप्लाई बाय 25 by 4 प्लस 7 by 2. कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं बेटा, पहले ऑर्डर ओपन होता है फिर उसके बाद कटिंग होती है. 2 2s are 4, 2 3s are 6. It will be 75 by 2 plus 7 by 2. 75 plus 7, it is 82 by 2. It gives us 2 4s are 8, 2 1s are 2. What is the product of zeros? 41. And what is the sum of zeros? 25 by 2. अब आप इन दोनों को पुट करो और पॉलिनोमियल बनाओ. And how we can frame the polynomial, that is k multiplied by x square minus sx plus p. K multiplied by x square. What is sum of zeros? 25 by 2. 25 by 2x
plus product is 41. As 2 is there in the denominator, we will take LCM. 2, this will be 2x square minus 25x plus 82. और यहाँ पे हम k की वैल्यू भी कितनी ले लेंगे? Let k will be 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज आवर आंसर, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82. अब हम इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं. Okay, let's do this again. Very good question. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, then find the quadratic polynomial whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha. हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, राइट. यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए, विच इज़ इक्वल टू माइनस 4/3, which is equal to 4/3 and alpha into beta is 1/3. अब हमें वो पॉलिनोमियल निकालनी है जिसकी जीरोस हैं ये वाली. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, पहले सम निकाल लेते हैं, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. यू हैव टू टेक LCM which is equal to alpha beta. It will become alpha cube plus beta cube. What is the identity for alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta bracket alpha plus beta divided by alpha into beta. अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं. अब इन सारी वैल्यू, ये कौन सी आइडेंटिटी से बना है बेटा? ये वाली आइडेंटिटी थी ना, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी. ये इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये इसमें से माइनस हो गया तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी. अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की करो और अल्फा इंटू बीटा की करो और इसको सिंप्लीफाई करो. अल्फा प्लस बीटा इज 4/3. दिस इज 4/3 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज 1/3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3. अब इसको सिंप्लीफाई करिए. पहले तो न्यूमिनेटर कितना आ जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय 27. यहाँ से 3 से 3 कट हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3. अब ये होल जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 3/1. पर आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते, अभी आपको यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा. LCM विल बी 27. 64 will remain as it is. 3 how many are? 3 9s are 9 4s are 36 multiply by 3/1. 3 1s are 3 9s are. अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आंसर आता है. This will become 14. This is 5 8 and this is 2 divided by 9. 28 डिवाइडेड बाय 9. ये तो हमारे पास सम आ गया. प्रोडक्ट निकाले. प्रोडक्ट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. यहाँ से एक ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? इट इज रिमेन इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1/3. नाउ यू गॉट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इन दोनों को पुट करिए और अपनी पॉलिनोमियल बनाइए. And the required polynomial will be k multiplied by x square minus sx plus p, which is equal to k multiplied by x square minus s is 28/9x plus p is 1/3. अब यहाँ पे आप 9 को LCM ले लो और k की वैल्यू भी कितनी ले लो? 9. Let k will be 9, LCM will be 9. 9x square minus 28x plus 3. 9 से 9 कट हो जाएगा and this is our required polynomial. Next question is, if one zero of the polynomial this is twice the other. एक ज़ीरो जो है वो दूसरे की twice means 2 times है, डबल है. Find the value of b. Also find the zeros of the पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड. आपने पहले तो b की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्या निकालना है? जीरोज निकालनी है. तो
उन्होंने बोले 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर. तो गिवन पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस b. लेट अल्फा एंड 2 अल्फा आर इट्स जीरोस. राइट, अगर ये दोनों इसकी जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 which is equal to 6. This is 3 alpha is equal to 6. Alpha will be 6 by 3. This is 2. Alpha is 2. If alpha is 2, now you can find out product of zeros. Alpha multiply by alpha multiply by 2 alpha which is equal to b upon 1. This is 2 alpha square which is equal to b. b is remain as it is. यहाँ पे alpha की value put करो. Put alpha is equal to 2. It is 2 multiplied by 2 square is equal to b. 2 2s are 4, 2s are 8. What is the value of b? b is 8. Right? अब हमने जो पॉलिनोमियल है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड. आपके पास जो पॉलिनोमियल बनी है आपने उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है. क्या पॉलिनोमियल बनेगी आपके पास? पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. लेट्स फाइंड आउट इट्स जीरोस. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8. x कॉमन आ गया, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन, x minus 2, 1 0 will be 4, another 0 will be 2. अब यहाँ से भी निकाल सकते थे. अगर अल्फा 2 है तो another 0 will be 2 alpha, that will be 4. Right? Let's do the next one. In this question we have alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 1. Find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha. अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन सेम ही टाइप के करवाए हैं. आपको एक पॉलिनोमियल दी होगी जिसकी जीरोस अल्फा और बीटा हैं. आपने वहाँ से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है. फिर आपको जो पॉलिनोमियल निकालने को उन्होंने बोली है उसकी जीरोस आपके पास कुछ अल्फा और बीटा की टर्म्स में होंगी. वहाँ से आपने उन जीरोस को सम और प्रोडक्ट निकालना है ताकि हम पॉलिनोमियल निकाल सकें. हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल थी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो. We will get minus b upon a. तो b तो है नहीं है तो ये तो 0 आ गया. What about alpha into beta? This is minus 1. Now we have to find out the polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta, 2 beta upon alpha. तो पहले तो सम निकालेंगे. Sum will be 2 alpha upon beta plus 2 beta upon alpha. You can take LCM. This is 2 alpha square plus 2 beta square divided by alpha beta. What should be the next step? 2 common. Alpha square plus beta square divided by alpha beta. 2. What is the identity for alpha plus beta whole square? Alpha square plus beta square is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta divided by alpha beta. अब इसकी वैल्यू पुट करिए. सम विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 0. तो ये वाला तो 0 हो जाएगा. दिस इज 0 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज माइनस 1. नाउ इट इज 2. 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 2 राइट डिवाइडेड बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4. प्रोडक्ट निकालें. Product will be 2 alpha upon beta multiplied by 2 beta upon alpha. ये तो कट गया. It is again 4. Now find the polynomial. Required polynomial will be we are having k x square minus sx plus p. This is k x square minus plus 4x plus 4. And here we can take k is equal to 1. This is our required polynomial. In this question we have if the squared sum of the zeros of the quadratic polynomial this is equal to 144. इसका क्या मतलब है?
अगर हम दोनों ज़ीरोज़ के डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। और ये हमारी गिवन पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसकी ज़ीरोज़ हैं। लेट कर लेते हैं, हमें p की वैल्यू निकालनी है, राइट। द गिवन पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस 45. Let alpha and beta are its zeros. अब हमें स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, स्क्वायर डिफरेंस मीन्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है। अब इसमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट इट इज, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 144। यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी कौन सी बन जाती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144. दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144. हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ तो हम सीधी नहीं पुट कर सकते थे, ना ही हम इसमें से जीरोज़ निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, विच इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से ही था, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा गिव्स अस माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। अगर ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ माइनस p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करिए इस इक्वेशन में। अल्फा प्लस पुट इन 1, कंसिडर दिस इक्वेशन एज 1। यहाँ पे आ जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 144. This is p square minus 180 is equal to 144. P square is equal to 144 plus 180, which gives us p square is equal to 4. 324. Now 324 is square of which number? You have to transpose the square on another side. You will get square root of 324. तो p will be प्लस माइनस 18. यहाँ पे आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो हम स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ लिखते हैं तो इसमें प्लस और माइनस दोनों साइंस लगाना इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सिंपल 18 नहीं लिख सकते, अदरवाइज आंसर गलत हो जाता है, राइट। इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 18 स्क्वायर रूट में जब भी आपके पास आंसर आएगा, अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना दिया हो कि इट इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू रिजेक्ट दिस नेगेटिव नंबर। बट यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ p की वैल्यू पूछी थी, p की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी, और स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको कहीं से भी रिजेक्ट नहीं कर पा रहे। तो दिस विल बी द आंसर। p की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी प्लस 18 और दूसरी आएगी माइनस 18। This question is from CBSE Board Exam 2025. Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both polynomials is. यहाँ पे हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है। दोनों पैराबोलास एक्स एक्सिस पे टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जीरोज बोथ द पॉलिनोमियल्स हैव। आपने बताना था कि दोनों पॉलिनोमियल्स की डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट जीरोस कितनी हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उस पॉलिनोमियल की उतनी जीरोस होती हैं। अगर आप इस पॉलिनोमियल की देखो तो 2 जीरोस हैं, इसकी भी 2 जीरोस हैं, बट उन्होंने पूछा तो दोनों की डिस्टिंक्ट जीरोस कितनी है, तो वो तो 2 ही हुई ना। एक ये वाला पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, राइट। तो जीरोस तो हमारे पास 2 ही बनी ना, एक ए और बी। डिस्टिंक्ट जीरोस कितनी बनी, 2। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, there are 2 distinct zeros. The next one is if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta is equal to alpha into beta is equal to minus 2/3. हमें इसकी वैल्यू गिवन दे रखी है।
देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? के की। और ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। अब आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो यहाँ पे कितना आता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6/3 विच इज इक्वल टू -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? k/3, राइट। सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, क्या बनेगा आपके पास? यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा दिस इज k/3 इज इक्वल टू -2/3। हमने दोनों वैल्यूज इस गिवन रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर दी। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो। हाउ वी कैन फाइंड आउट k? यू कैन टेक द एलसीएम है, यू विल गेट 3 will be the LCM, 3 2s are 6 plus k is equal to -2/3. Common denominators we can cancel, so k will be -2 plus 6. So what is the value of k? K is 4. So which one is the correct option? D is the correct option. It is 4. Right? Is it clear? Okay, let's do the next one. The next question is, again these two questions are from CBSE board exam 2025. The sum of the zeros of the polynomial 5x minus 7x square plus 3. वैसे तो ये पॉलिनोमियल देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, बट यहाँ पे मिस्टेक होने के क्या चांसेस थे कि ये पॉलिनोमियल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई थी। मिडल टर्म उन्होंने पहले लिख दिया था, ये लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बिफोर doing anything else, before finding out the sum, we need to write it in the standard form. That will be -7x square plus 5x plus 3. Now you have to find out sum of zeros. Sum will be -b upon a. This is -b is -5 upon -7. Answer will be 5/7. C is the correct option, right? The next one is, if the zeros of the polynomial x square plus ax plus b are in the ratio 3:4, then prove that 12a square is equal to 4ab. अब बेटा आपने यहाँ पे a b में उसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर लेना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कि वो a यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी इक्वेशन दी हुई है आपने उस गिवन इक्वेशन के साथ डील करना है, राइट? ना कि आपने इसमें से एज्यूम कर लेने कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और यहाँ पे a 1 है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इज इट क्लियर? द गिवन पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब हमारे पास जो, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल A की वैल्यू 1 आएगी, कैपिटल B की वैल्यू A आएगी और कैपिटल C की वैल्यू स्मॉल b आएगी। इस तरह से है यहाँ पे दे रखे कोफिशिएंट्स, राइट? अब उन्होंने बोला था इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 3:4, इसकी जो जीरोस हैं वो 3:4 की रेशो में है। रेशो का क्या मतलब होता है कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो ओरिजिनल जीरोस होंगी उसमें कोई एक फैक्टर कॉमन रहा होगा, उसको हमने कैंसिल कर दिया, राइट? अब हम उस कॉमन फैक्टर को कंसीडर करके जीरोस लिखेंगे। जीरोस विल बी, जीरोस कैन बी रिटन एज, हाउ वी कैन राइट द जीरोस? अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल ले लो, मोस्ट कॉमनली हम x लेते हैं, बट x इसमें था, a भी नहीं ले सकते क्योंकि a भी है b भी है, तो वी कैन टेक अनदर वन, वी कैन टेक 3m एंड 4m आर इट्स 2 zeros, राइट? अब फाइंड आउट करें सम ऑफ जीरोस। Sum of zeros, that is 3m plus 4m, किसके इक्वल होता है? -b अपॉन a, कैपिटल -b अपॉन a। मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है यहाँ पे? ताकि आप ये वाली इक्वेशन के साथ कंफ्यूज ना हो जाए, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस स्मॉल a अपॉन दिस इज 1, तो इट इज इक्वल टू -a। 3 plus 4 is 7m, 3m plus 4m is 7m is equal to -a। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -a/7। अब हमारे पास निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे?
Product will be this is 3m multiplied by 4m which is equal to 12m square. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज 12m square can be written as b upon 1. तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? b is 12m square. और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? यहाँ से a की वैल्यू निकालो, ये आ गया a हमारे पास 7m और साइन इधर चला जाएगा, a विल बी -7m. अब हमारे पास a भी है b भी है. हमने ये प्रूफ करना है. पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, दोनों में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं सेम आंसर आते हैं. नाउ वी हैव टू प्रूव 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. तो यहाँ पे a की वैल्यू है -7m और b की वैल्यू है 12m स्क्वायर. 12a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो -7m स्क्वायर. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट. इट इज 12, 7 7 49 m स्क्वायर. तो आंसर कितना आ जाएगा? 49 मल्टीप्लाई बाय 12m स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड निकालिए. राइट हैंड साइड इज 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b. दिस इज 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज -7m. सॉरी, यहाँ पे ना क्वेश्चन इज 49b, not 4ab. Question is 49b. This is 49b. We have to, this is left hand side 12a square and right hand side is 49b. This is 49. What is the value of b? b is 12m square. अब देखिए ये सेम है, 49 मल्टीप्लाई बाय 12m स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखने हैं. होप यू गॉट इट. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन मैसेज. ओके, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क. ओके, दीज 2 questions आर होमवर्क. These are also previous year questions, right? And you can write your answers in comment box. Bye, take care.